Hello and namaste everyone. This is my second video on one of the chapter of microeconomics, that is theory of demand. In this chapter I have covered the topics like determinants of demand and all the factors affecting the demand of commodity, whether it is an individual demand or market demand. So in short, I have taken the demand function and its two parts, that is individual demand function and market demand function. Let us firstly understand the meaning of demand function. Just have a look. Meaning of demand function. Look, demand function is a functional relationship between demand of a commodity and its various determinants. It means whatever the relation exists between demand of any given commodity and all the factors that affect the demand of commodity is treated as demand function. The one more definition of demand function is given below. The functional relationship between quantity demanded of a particular commodity, any particular commodity, and its quantity demanded, or we can say demand also. The functional relationship between that डिमांड एंड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, यानी उस कमोडिटी की डिमांड पे जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जिन जिन चीजों की वजह से उसकी डिमांड जो है वो चेंज होगी, वो सारी चीजों के साथ जब हम उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो उस रिलेशन को हम कहेंगे डिमांड फंक्शन. लाइक डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स, डिमांड कर्व इज ऑफ टू टाइप्स, डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप. इन द सेम मैनर डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. जस्ट हैव अ लुक. Number one is individual demand function. Individual demand function. If we recall the topics of last video, what was individual demand? Demand by an individual buyer of market. In the same way, the definition of individual demand function is the functional relationship between demand and the various determinants for an individual buyer of market. यानी मार्केट के एक बायर की डिमांड और उस एक बायर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स, उनके बीच का जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, उस फंक्शनल रिलेशनशिप को ही हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल demand function कहेंगे. Let's have discussion on one more definition. It's the functional relationship between individual demand and various factors affecting the individual demand is known as individual demand function. It means when we take an individual demand and study its relationship with all the factors that affect the individual demand of commodity, such relation will be treated as individual demand function. Now just have a look on the statement, or we can say the expression or the equation in which the demand function is being expressed. Just have a look. Dx is the function of Px, Pr, T, Y and Fx. Dx, that means demand for commodity X, equal to F. F here means the function of. Now it is a function of 5 factors. Number 1, Px, price of commodity. जिस commodity की हम बात कर रहे हैं, उसी commodity की own price को अगर हम लेते हैं तो वो own price उस commodity की demand को कैसे इफेक्ट करेगी, उसका ये पहला फैक्टर है. own price उस commodity का पहला फैक्टर है. नेक्स्ट देखिए PR, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड गुड्स? तो ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना. आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड गुड्स के बारे में. देन आफ्टर द फैक्टर नंबर 3 इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर जब कोई कमोडिटी खरीदने जा रहा है तो उसके भी तो कुछ टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस है, तो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस T से डिनोट किए जाते हैं. Y स्टैंड्स फॉर इनकम. इकोनॉमिक्स में हम इनकम के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो Y है, ठीक है. तो Y यानी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और इनकम ऑफ बायर. एंड नंबर 5 इज Fx, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किससे रिलेटेड है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस पॉइंट को आगे पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन is having 5 determinants. It means individual demand or demand of an individual buyer of the market is affected by 5 determinants, 5 points. What are the 5 determinants? Let's have a discussion on each one by one. देखिए जरा, द फैक्टर नंबर फर्स्ट वाज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. फैक्टर नंबर फर्स्ट की अगर मैं तो वो क्या है हमारे सामने? इट इज ओन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी. जो भी गिवन कमोडिटी लिए, से आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की प्राइस. वी हैव टेकन कमोडिटी एक्स, तो उसी की खुद की प्राइस. तो dx इज द फंक्शन ऑफ px. इंपॉर्टेंट बात ये है, एक फैक्टर काम करेगा तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. इट मींस इफ वी आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन वी विल कंसिडर ऑल द अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट. बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है. तो देखिए नंबर फर्स्ट जो है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्या लिखा है?
ओन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट। कमोडिटी की खुद की जो प्राइस है उसका डिमांड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ग्रेट इंपैक्ट पड़ता है। और क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर हम सोचें एज अ कंज्यूमर तो हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है उसको कम खरीदना प्रेफर करते हैं। तो इट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। यानी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देता है। इट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस while other factors are constant and vice versa। यानी जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बाकी सारे फैक्टर्स उस टाइम पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि हम क्या करेंगे, जब भी आप प्राइस के साथ, ओन प्राइस के साथ कमोडिटी को, उसके डिमांड फंक्शन को पढ़ोगे तो डिमांड की जगह बेटर वर्ड जो रहता है वो रहता है क्वांटिटी डिमांडेड। सेकेंड लाइन अगर आप नोट करें तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बेटर वर्ड रहता है, ठीक है। बाकी सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिमांड, बाकी सभी फैक्टर्स के साथ, बट ओन प्राइस के साथ हम क्या यूज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। आगे देखिए, फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमने कौन सा लिया था, इट वाज पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसी के बारे में बताया है यहाँ पे मैंने, when change in price of a commodity affects the demand for another commodity then the given commodities can be treated as related goods। यानी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है और उसकी वजह से किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये जो दो कमोडिटीज है इनके बीच में कुछ रिलेशन है, डेफिनेटली तभी तो फर्क पड़ रहा है। तो ये जो रिलेशन वाले कमोडिटीज है जिनका एक दूसरे की प्राइस और क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनको हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, बोथ आर related। If there will be a change in price of tea then demand of coffee will definitely get affected। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फैन की और फुटवेयर की, तो क्या कोई रिलेशन है दोनों में, विल अ चेंज इन प्राइस ऑफ फैन कॉजेज अ राइज और फॉल इन डिक्रीज इन राइज और फॉल इन द डिमांड फॉर शूज, नो, फुटवेयर की और फैन की प्राइस में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये नॉन रिलेटेड गुड्स हो गए, है ना। तो हम देख सकते हैं पेन एंड इंक रिलेटेड गुड्स है, ठीक है। मार्कर एंड इंक ये भी रिलेटेड गुड्स है, लेकिन क्या आपके रजिस्टर और आपके क्लोथ्स का कोई रिलेशन है, नहीं, ये नॉन रिलेटेड गुड्स है। तो हम यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, और दोनों रिलेटेड गुड्स का कंज्यूमर की डिमांड पे बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ता है, रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस का, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से रिलेटेड गुड्स है, पहले तो हम ये समझते हैं। नंबर वन है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन है ना, जो एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो देखिए, दोज दैट कैन बी यूज्ड और यूज्ड टू रिप्लेस ईच अदर, ऑल द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द अदर गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर गुड। फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन एंड जेल पेन। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन और आपका बॉल पेन जो है वो चलना बंद हो जाता है, एक्सेप्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, जो जनरल एग्जाम है, तो आप जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ ब्लू मार्कर एंड ब्लैक मार्कर, अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है ब्लू मार्कर यूज कर रहा है बट ब्लू इंक अवेलेबल नहीं है, तो वो वहां पे ब्लैक मार्कर को भी यूज कर पाएगा। यानी दीज आर द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज कैन बी रिप्लेस फॉर वन अनदर, ठीक है। तो वो सभी गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो माजा एंड फ्रूटी, माजा नहीं मिला तो फ्रूटी भी ले सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है दोनों। कोक की बात कर लो और पेप्सी की बात कर लो। हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं दैट इज टी एंड कॉफी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस ह्यूमन बीइंग की हम स्टडी कर रहे हैं उसे चाय का कोई नशा नहीं है, नॉर्मल है ना, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टी को लेके एडिक्टेड है। तो अगर उस ह्यूमन बीइंग की बात हम करें तो वहां पे उसके लिए टी नहीं है तो वो कॉफी से काम चला सकता है, यानी टी और कॉफी का सब्स्टिट्यूशन वो कर लेगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस का हमारी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए जरा समझते हैं इसको कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस का हमारी कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
There is a direct relationship between price of substitute goods and demand of other good. यानी substitute की price का और हमारी commodity की demand का कैसा relationship है? बिल्कुल direct relationship है, positive relationship है. इसका मतलब अगर substitute महंगा होता है तो हमारी commodity की demand increase हो जाती है. substitute की महंगा होते ही given commodity की demand क्या हो जाती है? increase हो जाती है. कैसे increase हो जाती है? समझते हैं इस चीज को. You as a rational consumer, अगर आप एक rational यानी समझदार consumer हैं, आप टी कंज्यूम करते हैं, बट आप ये देखते हैं कि मार्केट में क्या हो गया है, टी की प्राइसेस जो है वो कॉफी के कंपैरेटिवली हायर है. टी जो है वो महंगा है और कॉफी देखें तो कंपैरेटिवली काफी सस्ती पड़ती है. तो हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करके कॉफी ले आएंगे. टी की जगह हम क्या यूज करने लग जाएंगे, कॉफी यूज करने लग जाएंगे. यानी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो कॉफी जो हमारी गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इवन व्हेन कॉफी की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है. हम पेप्सोडेंट और कोलगेट का एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों की जो ट्यूब आ रही है 100 रुपीज की आ रही है. ठीक है, कोलगेट की भी 100 रुपीज की, पेप्सोडेंट की भी 100 रुपीज की. अब हम क्या कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं. कोलगेट लेने जाते हैं हम नेक्स्ट टाइम जब शॉप पे. अच्छा, यहाँ पे जिस कमोडिटी की हम स्टडी करेंगे वो कमोडिटी हमारी पेप्सोडेंट रहेगी. सपोज पेप्सोडेंट इज गुड एक्स और हम लेने गए कोलगेट. हम कोलगेट के कंज्यूमर थे. अब कोलगेट की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो पेप्सोडेंट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना. कंज्यूमर्स जो कोलगेट कंज्यूम करना चाह रहे थे वो कहेंगे भाई कोलगेट तो महंगा हो गया है, पेप्सोडेंट उतनी रेट में आ रहा है, 100 रुपए में आ रहा है, तो हम तो क्या कर लेते हैं, पेप्सोडेंट को परचेज कर लेते हैं. इट मीन्स वेन एवर देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी. तो द डायरेक्ट रिलेशनशिप. सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिलेटेड गुड्स देखिए, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सेकेंड कैटेगरी कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है. ये वो गुड्स है जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं. फॉर एग्जांपल मार्कर एंड इंक. मार्कर के बिना इंक का काम नहीं है और इंक के बिना मार्कर का काम नहीं है. ठीक है, तो इन कमोडिटीज में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड फॉर गिवन गुड दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है. सपोज बोर्ड मार्कर्स जो है वो कॉस्टली हो गए तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका यूज कम किया जाएगा और उनका यूज कम किया जाएगा तो मार्कर की जो इंक है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी हम यहाँ पे अपनी मेन कमोडिटी मांग रहे हैं इंक को. ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको ले लिया हमने, मार्कर को. तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होती है हमारी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मींस नेगेटिव. बोथ द थिंग्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम राइजेस, आइसक्रीम की प्राइस इंक्रीज होती है तो आइसक्रीम को कंप्लीट करने वाला गुड दैट इज आइसक्रीम टॉपिंग, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों चीजों में. थर्ड डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं. थर्ड डिटर्मिनेंट आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. कौन सा डिटर्मिनेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया है मैंने इसको. ये कह रहे हैं टेस्ट और प्रेफरेंस किसी भी कंज्यूमर के मार्केट डिमांड पे या इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल की और मार्केट की दोनों डिमांड पे इम्पैक्ट करेंगे. अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होते हैं ना. देयर आर वेरियस फैक्टर्स which affect the taste and preferences of the consumer. For example, the fashion in market. अभी जो फैशन चल रही है वो फैशन का गुड होगा तो डिमांड बढ़ेगी और उस फैशन का नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. तो इसका भी हैवी इम्पैक्ट हमारी कमोडिटी पे पड़ता है. हमें बस इतना ध्यान रखना है कि whenever there is a favorable change in taste and preferences of consumer, demand for the given commodity increases. फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड बढ़ेगी और अगर कभी अनफेवरेबल चेंज आ गया तो डिमांड कम हो जाएगी. हाँ जी, तो 3 डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो हमारा है दैट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर या इनकम ऑफ बायर. जो पर्सन उस कमोडिटी को खरीद रहा है उसकी इनकम भी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करेगी. बिल्कुल, डेफिनेटली. तो देखिए dx इज द फंक्शन ऑफ y दैट इज डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ बायर, इनकम ऑफ द बायर. अब देखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कमोडिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वी मस्ट कैटेगराइज द गुड्स इनटू 2 पार्ट्स. 2 तरीके के गुड्स हो जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग. ठीक है, कौन से होते हैं देखिए.
नंबर 1 इज नॉर्मल गुड एंड नंबर 2 इज इंफीरियर गुड। पहले नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स जो एकदम नॉर्मल है। अब नॉर्मल कौन से होते हैं? वो सभी गुड्स, वो सभी चीजें जिनकी डिमांड मार्केट में प्राइस के इनकम के इंक्रीज होते ही इंक्रीज होती है, यानी ऑल दोज गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम इज नोन एज नॉर्मल गुड। यानी हर वो कमोडिटी जिसकी डिमांड तब इंक्रीज हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उसको नॉर्मल गुड कहते हैं। ये ऐसे गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर मोर एंड मोर खरीदना प्रेफर करता है जैसे ही उस कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। और वैसे बात करें तो ये सभी नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर हमेशा ज्यादा खरीदना प्रेफर करता है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। यानी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ेगी, और कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ गुड देखिए। सेकेंड कैटेगरी जो है हमारी वो है इंफीरियर गुड्स। ये नॉर्मल से अलग है, नॉर्मल की जस्ट अपोजिट है। दीज आर द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। यानी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है ना, तब वो इन गुड्स को खरीदना प्रेफर करता है, और जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो इनका कंजप्शन कम करने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये पुअर क्वालिटी गुड्स हो गए, या ये वो गुड्स हो गए जो हम तब खरीदना प्रेफर करते हैं जब हमारी इनकम लो होती है। लोअर इनकम पे जो कंज्यूमर है वो इन तरीके के गुड्स को खरीदना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेज। इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी दोनों इनवर्स डायरेक्शन में मूव होते हैं। कौन कौन सी चीजें? इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर अ इंफीरियर गुड। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज प्योर घी जो है, देसी घी जो है, वो नॉर्मल कमोडिटी होगा, और जो आपका डालडा घी है वो इंफीरियर गुड होगा। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? प्योर घी का कंजप्शन तो बढ़ाएगा, लेकिन डालडा घी का कंजप्शन क्या करेंगे? हम कम करेंगे। इफ वी आर कंज्यूमिंग इट, सपोज अ फैमिली इज कंज्यूमिंग बोथ टाइप ऑफ घी, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर इनकम इंक्रीज होगी तो दे विल इंक्रीज द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, वेयर एज दे विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। और वहीं हम बात करते हैं अपोजिट सिचुएशन की। अगर उनकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन में वो नॉर्मल गुड की डिमांड को तो क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे नॉर्मल गुड की डिमांड को, वेयर एज वो क्या करेंगे? इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। यानी नॉर्मल गुड्स इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, वेयर एज इंफीरियर गुड्स जो होते हैं वो इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ भी डिस्कस कर लिया है जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या अजम्पशंस है, वो भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। नाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस एंड नंबर 2 एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। देखिए, अगर प्रेजेंटली प्राइस इंक्रीज हो रही है बट अ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ फर्दर इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइजेस, तो वो क्या करेगा? करंटली डिमांड भी इंक्रीज कर देगा। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में ये कमोडिटी महंगी होने वाली है तो डेफिनेटली हम उसको प्रेजेंट में ज्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे, है ना, ताकि हमें फ्यूचर में उसको हायर प्राइसेस पे नहीं खरीदना पड़े। तो अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में हाई प्राइस रहेगी, इफ अ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ हायर प्राइस इन नियर फ्यूचर, देन ही विल इंक्रीज द करंट डिमांड। एंड अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, इफ ही इज एक्सपेक्टिंग अ लोअर प्राइस इन फ्यूचर सिचुएशन, देन ही विल जस्ट डिक्रीज हिज प्रेजेंट डिमांड। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर इनकम। If I am expecting a rise in my future income, then I will just reduce my current demand, है ना। अगर देखिए, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इनकम। अब अगर हम बात करें फ्यूचर इनकम की, अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में उनकी इनकम इंक्रीज होने वाली है तो वो करंट सिचुएशन में डिमांड भी ज्यादा करेंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ हायर फ्यूचर इनकम। वेयर एज इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में उनकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो दे विल जस्ट स्टार्ट सेविंग सम मनी इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और प्रेजेंटली वो क्या कर देंगे? अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, है ना। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड प्रेजेंट डिमांड।
देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, इसका सेकेंड पार्ट आपका है फ्यूचर इनकम, है ना। अगर कंज्यूमर फ्यूचर में जो इनकम में चेंजेस एक्सपेक्ट करता है तो प्रेजेंटली उसकी डिमांड भी जो है वो इफेक्ट होगी। अब देखिए कैसा रिलेशन होता है। अगर मुझे लग रहा है इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइज इन माई फ्यूचर इनकम, तो प्रेजेंटली मुझे मनी सेव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। व्हाट आई विल डू इज इंक्रीज माई मार्केट डिमांड, मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगी। वेयर एज इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन फ्यूचर इनकम देन आई विल जस्ट स्टार्ट सेविंग माई इनकम फॉर फ्यूचर, है ना। करंट इनकम जो है वो मैं फ्यूचर के लिए सेव करूंगी और मेरी करंट मार्केट डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड प्रेजेंट डिमांड। इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन फ्यूचर इनकम देन करंटली ही विल इंक्रीज हिज डिमांड, whereas if a consumer is expecting a fall in future income then he will just reduce his current demand because he will start saving some money for future। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हियर वी हैव कंप्लीटेड द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट मार्केट डिमांड फंक्शन। हैव अ लुक। The functional relationship between demand and its various determinants for all the buyers of market। मार्केट के सभी बायर्स की डिमांड और उनको अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की इक्वेशन क्या बनती है। वेरी सिंपल, dx इज द फंक्शन ऑफ px। कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, px पहले भी पढ़ा है हमने, है ना, अभी पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। देन pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी पढ़ा है। t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, y इनकम ऑफ कंज्यूमर, fx फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ओनली टू न्यू टर्म्स आर हेयर। नंबर वन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट एंड नंबर टू इज s, दैट इज सीजनल फैक्टर, सीजन और वेदर। सो इन केस ऑफ मार्केट डिमांड द फर्स्ट 5 डिटर्मिनेंट्स विल बी सेम एज इंडिविजुअल डिमांड। जो चीजें इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करेगी वो मार्केट वाले को भी करेगी। Only there are 2 additional determinants that affects the market demand also other than the factors of individual demand। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यानी एक इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स मार्केट की डिमांड को भी इफेक्ट करेंगे और उसके साथ कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी होंगे दैट विल अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी। जस्ट हैव अ लुक, हम केवल उन एडिशनल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं। एडिशनल फैक्टर नंबर फर्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। मार्केट में जो बायर्स का नंबर है ना, dx इज द फंक्शन ऑफ n। देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बायर्स एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एकदम सिंपल है, इफ नंबर ऑफ बायर्स इन मार्केट इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए तो डिमांड भी तो इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज होते ही डिमांड भी कम हो जाएगी। एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना। आगे देखते हैं, द सेकेंड फैक्टर इज सीजन और वेदर। किसी कमोडिटी का सीजन होगा तो उस सीजन पे उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी सीजन और वेदर का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द सीजन ऑफ एनी कमोडिटी उसकी मार्केट डिमांड जो है वो काफी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ रेनी सीजन देन डिमांड फॉर अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स विल इंक्रीज, वेयर एज इफ इट इज अ विंटर सीजन तो डिमांड फॉर विंटर कोट्स और वी कैन से वुलन्स विल इंक्रीज। तो सीजन और वेदर का भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द सीजन उस कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हमने 4 कैटेगरीज ऑफ गुड्स को डिस्कस कर लिया था। नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये 4 हमारे सामने न्यू टर्म्स आ गई है। व्हाट इज अ नॉर्मल गुड? एनी कमोडिटी whose demand is directly related with income. Income increases then demand will also increase. And a inferior good, any commodities whose demand is negatively related with income. ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, any commodity which can be used to replace another commodity is known as substitute good for another commodity. Yani the goods which can be used to replace each other are known as substitute goods and the goods which complete the demand of one another are known as complementary goods. तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। वी हैव जस्ट कवर्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। थैंक यू सो मच।